Welcome to our empowering Ho'oponopono live session. Friends, I welcome you in this powerful session and आज का जो सेशन है अगेन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है because here we stand at the threshold of profound change, exploring the ancient Hawaiian art of Ho'oponopono, and that is for manifestation. Remember, it's not just a gathering, it's a sacred convergence of energies where the teachings of Ho'oponopono meet the digital realm. In the essence of forgiveness and self discovery, Ho'oponopono जो है वो एक गाइडिंग लाइट है. आप इमेजिन करो कि आप एक बहुत बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं. आपके पास कोई सोल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा है, बट आपको कोई एक ऐसा मंत्रा दे दे जो कि आप उसको चैंट करो एंड थिंग्स विल ओपन. आपका वो चैलेंज इजीली ओवरकम हो जाए. और वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए कर सकते हो. बहुत कुछ है सीखने के लिए इसमें. सो विद द विजडम ऑफ होपोनोपोनो कोच स्नेहल लोधा बहुत ही खास आज की मेहमान है. एंड शी विल बी गाइडिंग अस कि हम इस होपोनोपोनो को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसके में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. प्लस हम फ्यूचर में कैसे इसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं. सो आई इनवाइट यू टू बी प्रेजेंट, heart wide open, absorbing the teachings that will unfold the lot of opportunities for you. Each word carries the potential of to transform each insight and opportunity for growth. And friends, let's co-create an atmosphere of positivity and enlightenment. So बिना किसी देरी के मैं स्नेहल को स्टेज पे बुलाऊंगा, बट उससे पहले अगेन जैसे एक रिचुअल होता है कि थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता दूं. शी इज ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 million incredible women unlock their full potential, build a brighter future for themselves and their families. She is a qualified chartered accountant, a Reiki master, a certified law of attraction coach, and she has completed mind, body, soul surrounding course. She has learned Ho'oponopono and Firewalk expert, Rubik's Cube mentor, a lot of things. She has taken workshops on why right brainers will rule the future, effective parenting tactics, empower your life, magic of law of attraction, Ho'oponopono. बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. But friends, without any delay, let me call her on the stage and she will be talking to you for next 35 to 40 minutes. आपके जो भी questions होते हैं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी doubt के पूछ लो. This is the right time to connect with the right mentor, with the right coach, क्योंकि यहाँ पर आपको उसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो आप पूछोगे. राइट? जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछें. और बाद में तो ये रहता है कि काश मैं कुछ पूछ लेता या मैं लाइव होता. सो वट एवर कम्स टू योर माइंड, डू आस्क. एंड over to you, Snehal. If friends, welcome Snehal. Just type welcome Snehal, and over to you. Thank you so much, Prashant. So for inviting me to your YouTube live, and it's an immense pleasure that I'm live, and I am here to enlighten more and more souls. So hello everyone and vibrant souls out there. I am so excited because whenever we come live, it's a live energy which is flowing through. So we really feel that energy, and you are being a great audience. I am loving it. I am feeling really energetic with all of you. So I am Snehal Lodha, Law of Attraction Coach and Ho'oponopono Healer. As you know, because the coach, the Prashant, has already introduced me very nicely and with his beautiful words and lines. So I am really pleased that everybody has understood that I am live now. So yes.
So let's start our topic for today, which is Ho'oponopono. What is the miraculous power that we have in the technique called Ho'oponopono? So given you the option, like अगर आप ट्रैफिक वाले रोड जाना चाहोगे या आप हमेशा से चूज होगे कि नहीं यार रोड पे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, रोड एकदम ही क्लियर होना चाहिए, सो व्हाट विल यू चूज? एंड यस, आई कुड सी द कमेंट्स फ्लोइंग इन द चैट बॉक्स. एवरीबडी लव्स द नाइस एंड द एम्प्टी रोड. क्यों? क्योंकि यार आप फास्ट पहुंच सकते हो, जल्दी जल्दी पहुंच सकते हो, तो क्यों ना हम खाली रोड पे जाए जहां ट्रैफिक ना हो. ट्रैफिक में इट फील्स सो इरिटेटिंग, सो फ्रस्ट्रेटेड, एंड इवन द अपना जो रास्ता होता है ना वो 1 किलोमीटर मैटर नहीं करता, बट वो 30 मिनट्स ले जाता है. सो दैट ऑल्सो मैटर्स एंड टाइम हैज वैल्यू, राइट? तो क्या होता है पता है, जो आज हम जो लाइफ जी रहे, so we are living, we are traveling as if on a road with full of traffic. Now why a road with full of traffic? क्योंकि हम जो भी गोल सेट करते हैं उसमें हमारे सारे मिक्स इमोशंस जुड़े हुए हैं. हमारे काफी पास्ट बिलीफ, पास्ट बैगेज उस गोल को लेके है, काफी मिसबिलीफ्स है, काफी निगेटिव थॉट्स है एंड पॉजिटिव थॉट्स भी है. सो इवन इफ वी आर गिविंग आर 200%, बट हम लोगों को 100% भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है. एंड दैट इज द रीजन वी आर सर्चिंग ऑल द टाइम कि मैं क्या ऐसा कर लूं कि मुझे इसका रास्ता मिल जाए. बिकॉज वी आर ऑलवेज वरीड, यार आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई 200%, स्टिल व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. सो दैट इज द रीजन. व्हाट इज होपोनोपोनो, उसको यूज कैसे करना है और कैसे आप मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बन सकते हो, तो सून विल डाइव इनटू दैट टॉपिक. उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. एक कंसीडर करो कि ऑफिस डेस्क है और वो ऑफिस डेस्क के ऊपर है लैपटॉप, वाटर बोतल, सेट्स ऑफ ग्लास, अ कॉफी मग, AC का रिमोट. देयर आर a bunch of diaries that I every day refer while doing my work. There is files and there is नाश्ता, there is everything. So what do you think? क्या मैं फोकस कर पाऊंगी? क्या मैं अपने लैपटॉप पे अपने काम पे फोकस कर पाऊंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी. Because there are distractions which I could easily see, I could easily go through that. Yeah, that is the reason जब हम लैपटॉप को, जब हम हमारे ऑफिस डेस्क को अच्छे से क्लीन कर देते, देयर इज नथिंग बट जस्ट द लैपटॉप, नॉट इवन अ फोन इज ऑल्सो इन अ ड्रॉवर एंड दैट टू ऑन अ साइलेंट मोड. तो हम क्या कर पाते, अच्छे से फोकस कर पाते टुवर्ड्स आवर वर्क, टुवर्ड्स आवर डेडिकेटेड टाइम ऑफ दिस रूटीन ऑफ आवर वर्क. या वेरी ट्रू. तो ऐसे में क्या होता है कि आप फोकस रह सकते हो और आपको पता है कि आप मैनिफेस्ट तो जल्दी कर ही सकते हो. तो एज पर मी, जैसे अगर आप गूगल पे डालोगे कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स विश, इंटेंट एंड यू रिसीव. पहले तो आपको उसके बारे में सोचना है. जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा, आपने उसमें एनर्जी डालना चालू कर दिया एंड देन यू फाइनली रिसीव इट. But to fasten the process, I will say these are not 3 stages, but these are 4 stages. And the first stage is clean, wish, intent and receive. And then I will say कि आपका लिटरली जैसे ही आपके इमोशंस, आपके गोल्स, आपका बैगेज सब कुछ क्लियर है और आप एकदम ही फोकस हो टुवर्ड्स योर गोल्स, तो आप जो भी विश करोगे दैट विल इमीडिएटली बी रिसीव्ड. मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होगा. सो नाउ लेट्स जंप डायरेक्टली टू द टॉपिक बिकॉज यू ऑल आर वेरी क्यूरियस नाउ कि आप बता भी दो यार कि होपोनोपोनो है क्या, और अगर मैनिफेस्ट करना ही है तो कैसे करूं. ऐसे मैनिफेस्ट करना है मुझे, तो घर मैनिफेस्ट करना है, कार मैनिफेस्ट करना है, आई नो. सो लेट्स डाइव. तो इट्स अ स्टोरी, इट्स अ हवाईयन टेक्निक. ये हवाईयन टेक्निक में जो डॉक्टर व्यूलेन है, इनको क्या हुआ पता है आपको? जब डॉक्टर व्यूलेन को ऐसे उनके सामने एक केस आई कि आपको एक मेंटल हॉस्पिटल को देखना है, तो ही वाज लाइक कि आई मीन क्या प्रॉब्लम है. तो वो वहां पे जो पेशेंट्स थे, जो एडमिटेड पेशेंट्स थे, दे वर मेंटली इंसेन. अब इंसेन का मतलब तो आप जानते हो, ऑलरेडी एक तो पागल है और उसमें इंसेन है. अब पागल लोगों को तो एक बार संभाला जा सकता है, चलो उनको रूम में लॉक करके रखा है, उनको आप टाइम टू टाइम खाना दे रहे हो, दवाई दे रहे हो, सब दे रहे हो, उनको आप संभाल सकते हो. बट वो लोग क्रिमिनल्स हो चुके थे, वो लोग इंसेन हो चुके थे. मतलब जैसे ही कोई भी स्टाफ, कोई भी नर्स, कोई भी वार्ड बॉय, अगर कोई भी डॉक्टर अगर उनको चेक करने जाता था, अगर उनको देखने के लिए जाता था, तो वो डायरेक्टली उनका मर्डर करना है, उनको हर्ट करना है, फिजिकली अब्यूज करना है, वो ये सब सारे पेशेंट्स ये सब करने लग गए थे. जब डॉक्टर व्यूलेन ने वो पूरा स्टोरी सुना,
तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है कि मुझे हॉलिडे की टिकट नहीं, बट मुझे जाना पड़ रहा है मेंटल हॉस्पिटल में टू हील दोज पेशेंट्स। दैट मीन्स आई हैव दैट पावर। पावर तो ठीक है, बट अगर मेरे सामने ऐसा कुछ आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विद इन मी जो मुझे क्लीन करने की जरूरत है। और जब मैं ये स्टोरी लोगों को बताती हूँ तो मैं उनको जरूर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको पता है कि एक बार 4 फ्रेंड्स थे, इन लोगों ने फिक्स किया कि हम 5 नंबर रोड पे ऐसे ही गॉसिप करने के लिए मिलेंगे। अब रात के 9 बज गए, ये चारों मिल गए। ठीक है, गॉसिप शुरू हो गई। अच्छा तेरा बिजनेस कैसा रहा, अच्छा तेरे घर पे क्या चल रहा है, तेरा फैमिली में क्या चल रहा है, गॉसिप शुरू हो गई। अचानक से एक डॉग आता है और बहुत जोर से वो भौंकने लग जाता है, वो चारों पे पॉइंटिंग, चारों पे वो डिस्कशन में वो एकदम जोर जोर से भौंकने लग जाता है। तो ये चारों कंफ्यूज हो गए। इसमें से एक ने क्या किया पता है, अपना बैग लेके भाग गया। उसने सोचा ही नहीं कि मेरे 3 फ्रेंड्स ऑलरेडी वहां पे वेटिंग पे है, वो सीधा भाग गया। जो दूसरा फ्रेंड था उसने तीसरे को ब्लेम करना चालू किया, मैंने तेरे को बोला था कि 5 नंबर रोड पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं और नहीं मजा आता है यार, कहीं और चले जाते, कॉफी शॉप में बैठ लेते। जो तीसरा फ्रेंड्स था उसने मजाक करना चालू कर दिया, मिस्चिफ करना चालू कर दिया, कुत्ते के ऊपर वो मतलब पत्थर फेंकना उसने चालू कर दिया। और जो चौथा फ्रेंड्स था उसने क्या किया कि वो दूसरे को ये करने लगा और उसको चिढ़ाने लग गया कि यार छोड़ना, वो क्या बात हो गई। तो अगर सिचुएशन एक है तो 4 रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं? दैट मीन्स जो हमारे अंदर है वही बाहर आने वाला है। तो अगर कोई भी चीज कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, मुझे कहीं पे कोई लाइफ में कुछ गोल पाना है, तो इट इज समथिंग वी आवरसेल्फ आर स्टॉपिंग आवरसेल्फ। अगर कहीं पे क्लीन करने की जरूरत है, कहीं पे अगर आपको कुछ भी टेक्निक यूज करने की जरूरत है, दैट्स यू विद इन योरसेल्फ, राइट? तो जैसे ही वो 4 फ्रेंड्स, अगर सिचुएशन एक है, जैसे अगर क्रोसिन की दवाई एक है और अगर मैं भी लेती हूँ, आप भी लेते हो, तो हर किसी का अगर हेडेक जा सकता है, तो वैसे ही अगर सिचुएशन एक है तो सबको क्यों अलग रिएक्शंस आ रहे हैं? दैट मीन्स व्हाटएवर इज विद इन यू विल कम आउट। तो वो डॉक्टर व्यूलेन ने जब वो वहां पे गए तो उन्होंने क्या करना चालू किया, उन्होंने जो वो 4 फ्रेजेस थे, वो 4 फ्रेजेस थे, वो खाली एक उन्होंने केबिन ले लिया था और वो केबिन में वो पेशेंट्स के फाइल लेके बैठते थे और पेशेंट्स के फाइल गो थ्रू करते करते ही यूज्ड टू से आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू। तो ये 4 फ्रेजेस वो जब बोल रहे थे तो उनको पता चला था कि उनके अंदर के जो ब्लॉकेजेस है वो क्लीन होते जा रहे, और जैसे ही उनके अंदर के ब्लॉकेजेस क्लीन होते जा रहे, हॉस्पिटल में सिचुएशंस बेटर होते जा रहे। इट्स नॉट समथिंग कि उन्होंने कोई मैजिक किया एंड सब ठीक हो गया, ऐसे नहीं हुआ। बट जब ये सिचुएशंस उनके सामने आने लगी तो उनको कहीं ना कहीं ये पता चला कि देयर इज समथिंग विद इन मी विच आई नीड टू क्लीन ऑन, एंड वंस आई डू दैट situations will automatically change. So my friends, always understand everything is lies within us. We have power to manifest everything. But जो चीजें हमारे साथ गलत हो रही है तो वो क्यों हो रही है? वो क्यों हो रही? बिकॉज ऑफ आर वाइब्रेशंस, आर फ्रीक्वेंसीज। जब ये जमाना जो है ना, जहां पे मुझे अगर मेरे हस्बैंड को थैंक यू भी बोलना है ना, तो मैं एआई को बोल देती हूँ, यार राइट मी अ लेटर, राइट मी अ मैसेज in 50 words saying my husband thank you just for sending me for this workshop, and it will give me very 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 effective message. जब जमाना इतना आगे पहुंच गया है और मेरा हस्बैंड मुझे कैच भी नहीं कर पाता है कि मैंने ये मैसेज एआई से लिखा है, जब इतने फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी में आप ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसा कौन सा हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हो ताकि आप ये सब चीजों से पीछे हट सको? जो भी गॉसिप हो रही है, जो भी ब्लेमिंग हो रहा है, जो भी आपके साइड में सामने जो भी निगेटिव सिचुएशंस आ रहे हैं, आप ऐसा क्या एवरीडे फॉलो करते हो दैट यू आर बीइंग टेकन केयर, योर सोल बीइंग टेकन केयर? आप ऐसा क्या कर रहे हो? तो जब वो डॉक्टर ने वो 4 फ्रेजेस हमेशा बोलना कंटिन्यूटी में चालू किया, तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप गूगल पे सर्च कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा, डॉक्टर मसारू इमोटो। डॉक्टर मसारू इमोटो ने वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर मसारू इमोटो बोलते हैं कि जब पहला जमाना था जहां पे सी शोर पे बैठ के जो ऋषि मुनि होते थे, वो लोग दे यूज्ड टू चैंट एंड यूनिवर्स यूज्ड टू स्टेबलाइज। लिटरली ये एक्सपेरिमेंट यूएसए में भी किया गया था। जब क्रिमिनल रेशियो बढ़ गया था तो उन्होंने डिसाइड किया कि वहां के जितने भी सेंट लोग थे उन लोगों ने एक सी शोर पे आके चैंटिंग किया एंड दे सॉ द रिजल्ट, क्रिमिनल रेशियो गोइंग डाउन।
क्योंकि water has that tendency to grab within. अब जैसे ये मेरे पास पानी है, इसमें अगर मैं ब्लू कलर डाल दूं तो ऐसा नहीं होगा, वाटर ऐसा नहीं बोलेगा कि नो आई डोंट वांट टू बी ब्लू, आई कांट बी ब्लू, आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहना चाहता हूं, नहीं. सो वाटर हैज टेंडेंसी, एंड अपने बॉडी में गुड न्यूज इज दैट आवर बॉडी कंटेन्स 70% ऑफ वाटर. अपने बॉडी में 70% ऑफ वाटर है. तो डॉक्टर मसारू इमोटो ने क्या किया, स्लाइड्स के ऊपर, जो कांच के स्लाइड्स होते हैं उसके ऊपर वाटर ड्रॉप्स डाले और उसको नीचे से लेबलिंग किया. आई हेट यू, आई ब्लेस यू, लव, हेट, यू मेक मी सिक, डिफरेंट लेबल्स किए. कहीं पे पॉजिटिव लेबल्स किए और कहीं पे निगेटिव लेबल्स किए. और उन्होंने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा. तो जब उन्होंने देखा तो उनको डिफरेंट फॉर्मेशंस दिखे. जिसके भी ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स लिखे थे उसमें पॉजिटिव फॉर्मेशंस दिख के आए, और जिसके भी ऊपर निगेटिव वर्ड्स लिखे थे उसमें निगेटिव फॉर्मेशंस इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेशंस दिख के आए. तो जब ये उनको पता चला तो उन्होंने बोला कि अपने बॉडी में 70% ऑफ वाटर है, तो क्यों ना हम उसको इन्फ्लुएंस करें टू सेट बैक, टू रिमूव ऑल द ब्लॉकेजेस विच आर विद इन अस. अगर वो ब्लॉकेज निकल जाएंगे तो मैनिफेस्टेशन विल बी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खाली सोचोगे और आप रिसीव करोगे. देयर विल बी नो गैप इन योर विश एंड रिसीव. मतलब इंटेंशन आपको देना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका इंटेंशन ऑटोमेटिकली राइट सेट हो जाएगा. तो डॉक्टर व्यूलेन का स्टोरी भी कहीं उसी तरह है. तो डॉक्टर व्यूलेन ने जब होओपोनोपोनो का रिसर्च किया तो उन्होंने जो वो 4 फ्रेजेस थी, अब वो 4 फ्रेजेस क्या है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. इट्स व्हाट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. कई बार हमारे सामने सिचुएशंस आती है और हम क्या बोलते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स. अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सही है ना बॉस, कोई आ ही नहीं सकता, कोई गलत इंसान अपने रास्ते में आ ही नहीं सकता. सो व्हाट मैटर्स इज आवर फ्रीक्वेंसी. और डॉक्टर व्यूलेन ने बस वही किया. डॉक्टर व्यूलेन ने बस खुद पे फोकस किया और उन्होंने वो 4 फ्रेजेस कंटिन्यूटी में जब वो बोलते गए तो वो वर्ड्स के क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं. और वो वर्ड्स के वाइब्रेशंस क्या, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू पुट यू इन दैट सिचुएशन. कई बार हम खुद के इनर वॉइस को, खुद के इनर चाइल्ड को समझ नहीं पाते. जब आप समझोगे और आप जब जानोगे कि यार, rather than me suffering, my inner child was suffering through. You know that, yeah? So it's your prior responsibility to take care of your inner child within. And doctor took 100% responsibility of his inner child within. और उन्होंने जब ये phrases बोली, I am sorry, I really mean कि मैंने आपको उस situation में डाला. I am sorry, my inner child. Please forgive me. प्लीज मुझे माफ कर दो. आई लव यू एंड आई थैंक यू. आई लव यू फॉर एवरीथिंग एंड एनी सिचुएशंस कम अक्रॉस, एंड आई थैंक यू बिकॉज अगर सिचुएशन सामने नहीं आती तो मैं कहीं भी खुद को अपग्रेड करने के लिए मैं नहीं आता. जैसे बोला जाता है कि हम कई बार होलिस्टिक लाइफस्टाइल में कब जाते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम्स सामने तूफान बन के आ जाती है. हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब सही में मेरा बीपी लो होके मैं गिर जाती हूँ. दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम आई गो टू डॉक्टर, आस्किंग देम कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. ये हमारा क्या बन चुका है, कल्चर बन चुका है. हम रेगुलर चेकअप के लिए नहीं चाहते. हम बोलते यार, आई एम जस्ट 33, आई एम जस्ट 32, व्हाई आई नीड रेगुलर चेकअप, आई एम ऑल ओके, आई एम ऑल फाइन. इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग फॉर रेगुलर चेकअप, दैट मीन्स यू आर डैमेज फ्रॉम विद इन. डजंट मीन दैट, राइट? सो जब डॉक्टर व्यूलेन ने ये 4 फेजेस कंटिन्यूटी में बोलना चालू किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. ही सॉ रिजल्ट आउटसाइड हिज वर्ड. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जब वाइब्रेशंस चेंज हो गए, आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली सेटल होने लगा. आउटर वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली डिफरेंस उन्होंने देखा कि जो मेंटली इंसेंट पेशेंट्स थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे.
पहले वहां पे कोई भी एज अ नर्स, एज अ ब्रदर, एज अ वार्ड बॉय काम करने के लिए तैयार नहीं था. इवन डॉक्टर्स वेर नॉट रेडी टू कम एंड सर्व दैट हॉस्पिटल. एंड अगर आप आज गूगल पे सेम चीज का स्टोरी देखोगे, तो वहां पे ऐसी कोई जगह ही नहीं रही कि जहां पे एटलीस्ट मेंटली इंसेन पेशेंट्स अभी एडमिट होते हैं. इतनी अच्छी तरीके से वो जगह हील हो गई. तो जब इतना आउटर वर्ल्ड जब हील हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये सब किस वजह से हुआ? जस्ट बिकॉज ही हील्ड हिमसेल्फ. और वही मैं आपको कनेक्शन करके बता रही हूँ कि हो'ओपोनोपोनो इज हाउ इट इज कनेक्टेड टू डॉक्टर मसारू इमोटोस एक्सपेरिमेंट. जब भी मैं लोगों को इनर चाइल्ड थेरेपी, हो'ओपोनोपोनो, ये सब चीजें करवाती हूँ, मैं उनको प्रैक्टिकली ये चीज करने के लिए बोलती हूँ कि आप जब भी घर पे जाओगे, आपको क्या करना है? कांच का ग्लास लेना है, 2 सिमिलर ग्लास है, उसमें आपको पानी भरना है, इक्वल वाटर, और नीचे से या उसको साइड से उसको लेबल करना है. एक को आप लेबल करोगे लव, और एक को आप लेबल करोगे हेट, और उसको डीप फ्रीज में रख देना है. एंड जस्ट ऑब्जर्व, मैंने कितने ही आज तक ओवर 100 लोगों के रिव्यूज, कमेंट्स में मेरे चैनल पे आते देखे, जहां वो लोग बोलते हैं कि जिसके ऊपर मैंने हेट लिखा था, पता नहीं क्यों वो ग्लास का जो ग्लास था वो ब्रेक हो गया. कई लोग बोलते हैं कि वो ब्रेक हो गया, कई लोग बोलते हैं कि कुछ अलग सा फॉर्मेशन हो गया, बिकॉज वर्ड्स हैज फ्रीक्वेंसी. या, और जब ये वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी है, और जब आप आपके ही बॉडी के अंदर के जो वाटर को आप जब बेटर फ्रीक्वेंसी से जब आप इन्फ्लुएंस करोगे, यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग ऑल थ्रू. यू नो, आपको एक स्टेज आ जाएगा कि जहां पे आपको आपके गोल्स लिखने भी नहीं पड़ रहे. गॉड, यूनिवर्स आपके साथ इतना अलाइन हो गया है कि ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग मोर देन व्हाट यू डिजर्व. या, सो डोंट यू थिंक कि आपको वो स्टेज तक पहुंचना है? वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एवरीबडी कैन रीच, इट्स वेरी इजी. जब एआई पे पहुंचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट होना हमारे लिए इतना इजी है, तो क्या ऐसी कोई लाइफस्टाइल जो हमारे लिए ही मिरेकलस रिजल्ट लाए, क्या हम वो फॉलो नहीं कर सकते फॉर आवरसेल्फ? मैं इतनी तो सेल्फिश हूं कि जहां मेरा बेनिफिट है, मेरे इनर चाइल्ड का बेनिफिट है, मैं जरूर करूंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट. तो जब भी हम हो'ओपोनोपोनो करते हैं, जब उसका फर्स्ट लेवल ऑफ हो'ओपोनोपोनो होता है, जहां पे लोगों को इतना उस चीज का अवेयरनेस नहीं होता है, लोग सबसे पहले जब भी हो'ओपोनोपोनो ट्राई करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? उस सिचुएशन को रिकॉल करते हैं कि मेरा इस चीज को लेके झगड़ा हुआ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. दिस इज द फर्स्ट स्टेज हो'ओपोनोपोनो. बट जब हम हमारे अवेयरनेस में रहते हैं, और जब हम एक स्टेज क्रॉस कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज एडवांस लेवल ऑफ हो'ओपोनोपोनो. और जहां पे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई कांट से नो टू एनीवन, दैट्स माय हैबिट. ये मेरी आदत है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाती हूँ, एंड दैट इज द रीजन आई अट्रैक्टेड दैट सिचुएशन. That means what is making me attract that situation is my habit of I can't say no. So that habit attracted that situation. तो मुझे काम कहाँ करना है? काम मुझे उस सिचुएशन पे नहीं करना है कि आई एम सॉरी टू अट्रैक्ट दैट सिचुएशन, बट आई एम सॉरी कि ये मेरी हैबिट है. जब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वहीं पे करेक्शन आना, वहीं पे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन फर्स्ट स्टेप, राइट? सो बेसिक हो'ओपोनोपोनो कम्स वेयर हम लोगों को बताते हैं कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हो'ओपोनोपोनो, व्हाट इज द वाटर, लाइक हाउ वाटर हैज दैट एबिलिटी थ्रू डॉक्टर मसारू इमोटोस एक्सपेरिमेंट एंड द प्रूफ दैट ही, उन्होंने जो बताया है. एंड सेकेंड लेवल, जब मैं उनको बताती हूँ कि वॉट एवर वी आर अट्रैक्टिंग इज बिकॉज ऑफ वॉट एवर विद इन अस. अगर मैं उस हैबिट को ही क्लीन कर दूंगी ना, तो वैसे सिचुएशंस मेरे अंदर नहीं आएंगे, वैसे सिचुएशंस मेरे सामने आ ही नहीं सकते. क्योंकि कई लोग हैं, दे आर नॉट दैट ब्यूटीफुल, स्टिल दे हैव अट्रैक्टेड वेरी गुड लाइफ पार्टनर, very good love life. That means appearance doesn't matter whenever it comes to attract a good life partner. Same with your career. ऐसा कोई डिग्री नहीं है इस यूनिवर्स में कि आप गूगल करके पूछ लो कि व्हाट इज
सबसे हाई अर्निंग वाला भाई मुझे वो बता दे डिग्री, मैं बस वही करना चाहता हूँ। आप ये डाल के देख लो गूगल पे, इट्स नॉट द डिग्री, इट्स नॉट द क्वालिफिकेशन, it's your ability that can make you crorepati or roadpati, right? Very true. So when you know that there is a spark within us, let's influence that for a good cause, let's influence that for our own benefit. So it's all about ho'oponopono. मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने हैं, आपको दुनिया कैसे दिखेगी? ब्लैक कलर, राइट? तो हम जो है ना किसी के भी साथ बिहेव करते हैं, मे बी होल्डिंग टू सर्टन पास्ट जजमेंट फॉर दैट पर्सन और मे बी कंसिडरिंग सर्टन थिंग फॉर फ्यूचर। हम कुछ ना कुछ एक तो पास्ट की चीज को पकड़ के उसके साथ बिहेव करते हैं या फ्यूचर में आने वाली चीज को लेके उसके साथ बिहेव करते हैं। हम प्रेजेंट को लेके बिहेव नहीं करते, एंड दैट इज द रीजन kids are known as innocent creatures, and as we grow up हम ये हैबिट डेवलप करने लग जाते हैं। जैसे हम जब किड्स थे और तब तो आप सोचो यार, आप खुद ही मैनिफेस्टेशन मैग्नेट थे यार। यू यूज्ड टू जस्ट आस्क फॉर थिंग्स एंड यू यूज्ड टू गेट थिंग्स, इवन मोर देन दैट, राइट? जब आज हम हमारे बच्चों को देते हैं तो वो जितना मांगते हैं उनसे ज्यादा हम देते हैं। दे आर इनोसेंट, दे आर प्योर फ्रॉम विद इन। हमें भी बच्चा बनना है, हमें भी प्योर बनना है। जब हम अंदर से प्योर हो जाएंगे, there is no judgment that I am holding for anyone, for any situation. Your job is done. You are already a manifestation magnet. Yeah. So I hope you all are getting the point, whatever I am talking about, the Ho'oponopono technique. Any questions, anything in your mind, you can ask me upfront. Prashant, I think I am done. So you can ask me questions, whatever people are asking for. Okay, wonderful, amazing session. Friends, बताओ जरा कैसा लगा आपको सेशन, कैसा रहा? एंड डू आस्क योर क्वेश्चंस, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, डू आस्क विदाउट एनी लॉजिक्स कई बार चीजों को हमारे स्टॉप कर देता है। सो व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट डू आस्क। मीनवाइल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, so I'll start with those questions. Yes, sure. Right. So, okay, the first question is like, give my thanks to ma'am for this wonderful insights about Ho'oponopono. Thank you so much. So Thank you so much. My question is, how can Ho'oponopono help in healing past traumas? तो कैसे होता है पता है आपको? मैं ना आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे ये वाटर ग्लास है, अब इसका कैपेसिटी कितना है? इतना आप इसमें पानी भर सकते हो, राइट? इससे ज्यादा इसमें नहीं जा पाएगा। भले ही आप उसके बाद में कितना भी बोलो कि नो दिस इज एक्वागार्ड वाटर, दिस इज वेरी प्योर वाटर, दिस इज अ वाटर विच इज लाइक वेरी गुड, नहीं मुझे डालना ही डालना है, बट इसकी कैपेसिटी इतनी ही है, इससे ज्यादा इसमें आप नहीं डाल पाओगे। तो पास्ट के ट्रॉमास जो अंदर रह चुके हैं ना, जब तक कि आप उनको बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप क्या कर पाओगे? आप कितना भी आज प्योरिटी डाल दो, चलो आज आपने कुछ सुना है, अच्छा आपने खुद के साथ रिजोल्यूशन किया है, जैसे अभी न्यू ईयर आएगा, सब जन हम रिजोल्यूशन करेंगे कि नहीं फ्रॉम टुडे आई विल बी लाइक, मैं एवरीडे ये करूंगा, मैं एवरीडे मेडिटेट करूंगा, मैं एवरीडे एक्सरसाइज करूंगा। बट जो पास्ट ट्रॉमा है वो कैसे निकलेगा माय फ्रेंड्स, राइट? तो पास्ट ट्रॉमा के लिए जब हम ये फ्रेजेस और वो सिचुएशन को हमारे इनर चाइल्ड के साथ, उसके लिए टेक्निक होता है कि जब हम इनर चाइल्ड के साथ अपना बचपन का फोटो लेके, या अगर हम रिकॉल कर सकते हैं, तो अगर हम जब इनर चाइल्ड को सच्ची में बोलते हैं कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सिचुएशन, फॉर पुटिंग यू इन दैट सिचुएशन, आई लव यू, आई थैंक यू, इनर चाइल्ड रेडी हो जाता है छोड़ने के लिए। यू नो दैट वो रेडी हो जाता है, तो हमें उसको रेडी करना है टू लेट इट गो। और जब वो हो जाएगा ना तो चीजें हो जाएगी। सो वी कैन डील विद द पास्ट ट्रॉमा, क्योंकि आपको जब पता चल रहा है कि कुछ तो ट्रॉमा था, दैट मीन्स स्टिल दैट इज देयर, राइट? मतलब अभी तक भी वो है, नहीं तो आप क्यों बोलते हैं ना कि देयर इज पास्ट ट्रॉमा? तो यू कैन हील दैट यूजिंग दिस 4 phrases. देयर इज अ प्रॉपर टेक्निक डूइंग दैट, हाउ टू डू दैट, सो आई विल टेल यू दैट. Okay, wonderful.
Wonderful answer. So I'm sure that you've got the answer. Okay, so next question is what role does gratitude play in the manifestation process? Like when we say Okay. thank you. So there is a types of affirmation that I always talk about, and one of them is maintenance affirmation, goal affirmation, and action affirmation. So maintenance affirmation is very important. When you are grateful for things that you have, you get more things to be grateful for. Just it is a very deep sentence to be understood, but just repeat it. When you are grateful for things that you have, you get more things to be grateful for. अगर जैसे मुझे किसी ने इनवाइट किया है या मुझे किसी ने मेरे लिए कोई फेवर किया है और मैंने उस इंसान को ना थैंक यू बोला, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो सोचेगा आई मीन, सो इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो अगर आपको आपकी इतनी अच्छी इम्यून सिस्टम है, यू नो एवरी मिनट देयर आर पीपल हु आर डाइंग अराउंड, कोई एक्सीडेंट से, कोई हेल्थ से, वी आर अलाइव माय बॉस, सो वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल. या Wonderful. Good answer, an amazing one. So the next question is, how can I set clear and powerful intention using Ho'oponopono? Yeah, so Ho'oponopono will not help you set your goals, but that will help you to take out your blockages. और जब अभी जैसे मुझे कार लेनी है, या मुझे कोई बंगलो मैनिफेस्ट करना है, या मुझे कोई अर्निंग मैनिफेस्ट करनी है, या मुझे कोई लव लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, तो ये सभी के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ तो बिलीव्स, कुछ तो पास्ट बिलीफ लेके चलते हैं. जैसे अगर कई बार हम देखते हैं कि मैं लोगों को एग्जांपल देती हूँ, जब भी मैं उनको मनी फ्रीक्वेंसी रेज करने के जब उनके मैं कोर्सेस लेती हूँ, तो मैं उनको कई बार ये चीज बताती हूँ कि अगर हमारे बाजू से लग्जरी कार जा रही है और कोई एक यंग लड़का कार में, मतलब शफर ड्रिवन कार है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और बाजू में वो लड़का बैठा है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, यार बाप का पैसा होगा, इतना यंग है ये बच्चा, इतनी लग्जरी कार कैसे ले सकता है. वॉट दैट डिनोट्स इज योर बिलीफ कि इतना जल्दी इतना पैसा जेन्युइनली नहीं कमा सकते. यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर आपको ये जब पता चलता है, तो आपको जब पता चलेगा तो समझ जाओगे आपकी मैनिफेस्ट कैसे करना है. तो जब भी आपको सेट करने हैं गोल्स, लेकिन अब जब हो'ओपोनोपोनो करके आपके गोल्स के ऊपर काम करोगे, वी हैव टेक्निक जहां पे हम टैपिंग करके लोगों को उनके वो बिलीफ के, जैसे इरेजर क्या काम करता है, इरेज करना, तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट है कि इरेजर मैंने हाथ में लिया, दैट मीन्स आई एम इरेजिंग, एंड यूजिंग दैट सेम इरेजर हम लोगों को हेल्प करते हैं कि उनके गोल्स के ऊपर क्लीनिंग करना है. उसका एक टेक्निक होता है जिसमें मैं उनको बताती हूँ कि कैसे यूजिंग इरेजर यू कैन क्लीन ऑन योर गोल्स. एंड वो धीरे धीरे, क्योंकि एनएलपी की टेक्निक से धीरे धीरे माइंड को पता चलता है कि यू आर क्लीनिंग ऑन सिंस यू आर यूजिंग इरेजर, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके गोल्स के ऊपर क्लीनिंग करना चालू कर देता है, एंड देन यू बिकम लाइक, तुमको जो चाहिए वो मिल ही जाता है. Yeah, you become a magnet. Manifestation magnet. Yeah, that's awesome. The next question is, ऐसे कुछ common misconceptions हैं जो like about Ho'oponopono, and if you would like to clarify if there are any or common misconceptions Ho'oponopono को लेकर. कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में जब मैं बात करूंगी तो मैं वही बताना चाहूंगी कि लोग है ना, जब तक मुझे बीपी की तकलीफ नहीं होगी तब तक मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएगी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी. अब इसके लिए मैं सिंपल एक एग्जांपल बताती हूँ. एक ना फ्रॉग था, दैट फ्रॉग वो गलती से पानी में गिरा और वो जो पानी था वो नीचे से बॉइल हो रहा था. अब जैसे ही वो पानी बॉइल हो रहा था ना, वो फ्रॉग है ना खुद को एडजस्ट कर रहा था, वो टेम्परेचर में धीरे धीरे बॉइल हो रहा था, वो धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर रहा था, पानी बॉइल होते जा रहा था, वो खुद को एडजस्ट कर रहा था. अब है ना, पानी एक स्टेज आ गया जहां पे एकदम से उबलने वाला है और फ्रॉग अभी खुद को उसमें रख नहीं पा रहा है. अब वो सोच रहा है कि लेट मी जंप आउट ऑफ इट, बट इट कांट जंप आउट ऑफ इट क्योंकि वो अभी थक चुका है. उसने कब से वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में एडजस्ट करने में अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट कर दी है कि वो जंप नहीं कर पा रहा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वेट
for situations to get worse. इतना लाइफ में अनकंफर्टेबल आने तक मत रुको. Don't get very comfortable with that discomfort. Yeah, take actions. There are tools, there are solutions available. Why not do it? AI का जमाना है यार, जहाँ पे हर चीजें जब AI से हो रही है तो क्यों ना हम भी करें, क्यों ना हम भी हमारी क्लीनिंग के लिए फटाफट शुरू हो जाए. दिवाली है यार, क्यों ना हो जाए. Yeah, so this is the first misconception that people really go about whenever it comes to a holistic approach. तो लोग क्या सोचते हैं, मेरी लाइफ तो सही चल रही है, मेरा तो सब बराबर चल रहा है मैम, आई एम वेरी हैप्पी. Don't wait for situations to get worse. Don't wait for discomfort to happen in your life. Don't get comfortable with that discomfort. Yeah. Wonderful example. So even ये भी कहा जाता है a stitch in time saves 9. अगर आप टाइम पर एक्शन ले लो, उस चीज के लिए वेट ना करो, तो बहुत कुछ आप बचा सकते हैं अपने लिए. और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि लोग अपने अननोन ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं और इसीलिए वो अपने नॉन पेन के साथ जीना शुरू कर लेते हैं कि ये पेन तो मुझे पता है. कितने लोग देखे मैंने जो खुश है वो डिस्कम्फर्ट के साथ, where I could see them, I could point them out, and they are sharing that with their friends, but not with others because they are comfortable with that discomfort. And मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि जैसे आपने अगर पॉपकॉर्न का जर्नी देखा होगा, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलते हैं एक पैकेट में. जब आप उसको लिए डायरेक्शन दिया होता है कि आपको कुकर में उसको डालना है, कुकर का लीड बंद करना है, एग्जैक्टली 2 मिनट्स में आपको दिखेगा कि पॉपकॉर्न्स आर ब्लोन अवे. एंड अगर आप टाइम पे उस कुकर को नहीं खोलोगे तो वही पॉपकॉर्न, आपको तो पता है स्पेस पूरा कुकर में ले रहा है वो, बट पूरे पॉपकॉर्न्स क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे. सेम अप्लाइज टू अस. अगर आज खुद पे काम नहीं करोगे ना, वो आज है ग्रैन्यूल के फॉर्म में, जब वो ब्लो हो जाएगा ना तो यही वाटर, यही आपके बॉडी में वो कितनी ज्यादा जगह लेगा, और तभी आपके मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे जगह बचेगी, आप मुझे बताओ कैसे जगह बचेगी. सो यू हैव टू क्लियर दैट ब्लॉकेजेस, क्योंकि वो होता ग्रैन्यूल है, जब फूलता है तो इतना बड़ा होता है. सेम अप्लाइज टू आवर नेगेटिव बिलीव्स दैट वी आर होल्डिंग विद इन. अगर आज नहीं निकालोगे, आज उस पर काम नहीं करोगे, दैट विल ग्रो एंड दैट इज क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस विद इन यू. So just be aware, take them out. Wonderful. So next question. I'm loving the session, but I'm just a beginner. So I just want to start my journey practicing Ho'oponopono. Any advice for me? Yeah, actually I take Ho'oponopono batches for everyone, like whosoever want to join. So you can join that. You can talk to Prashant sir and get that done. And I'll say one thing, being beginner doesn't matter. What matters is taking action. You know, you are no more beginner, my friend. Yeah, taking action matters, because when we understand ourselves and with that awareness, when we take steps towards our holistic life, miracle starts happening from there itself. Yeah, exactly. So don't delay, just take action and be an action taker. Yes. Next one is there any recommended time to practice Ho'oponopono for manifestation? Yeah. So basically क्या होता है ना, whenever we get up in the morning, हम लोग कई बार अच्छे मूड क्रिएट कर सकते हैं. इट्स नॉट कि हम हमेशा अच्छे मूड में होते हैं, बट जैसे बोला जाता है कि गुड स्टार्ट इज ऑलवेज अ गुड एंड. या सो इसके लिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि इट्स ऑलवेज प्रेफर टू स्टार्ट योर डे विथ फॉरगिवनेस, विथ रिलीजिंग दोज नेगेटिव ब्लॉकेज, and then moving ahead. Even before you sleep, if you release those blockages and feel gratitude for the whole day, obviously your night is taken care. And आपको खुद को पता है sleep is very important. अगर आप कंटिन्यूटी में खाली एक भी दिन आप अगर नहीं सोते हो ना, तो आपको खुद को पता चलती है कि आपकी हालत क्या हो रखी है. तो उसके पहले आप वो स्लीप के पहले आप अगर ग्रेटिट्यूड में हो, अगर आप ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहे हो, तो योर स्लीप इज मोर क्वालिटी स्लीप ओवर क्वांटिटी, एंड ऑब्वियसली देन रिजल्ट्स विल बी देयर. So there is as such no specific time, but yes, whenever you get up, it's a good time, and before you sleep, it's obviously a good time
to do these rituals. Okay, wonderful. So I'm sure now you have the answer that when you want to start your journey, and whenever you want, you can use this prayer specifically in the night and in the morning, right? Yeah. Okay. So another question is, how would I know, या ऐसे कौन से साइंस हैं जिनसे मुझे पता चले कि Ho'oponopono is working for me? या सो मैं आपको ये चीज के लिए बताऊंगी कि जब आपका कोई अच्छा फ्रेंड आपको मिलने आ रहा है तो आपको पता चलता है दैट आई एम हैप्पी। और अगर आप जिसको फ्रेंड मानते हो बट अंदर से आपके उसके वाइब्स नहीं जमते और अगर सपोज वो आपके ऑफिस में आया है तो हाउ यू फील is the indicator to identify whether things are going in a right direction or not। और उसके लिए मैं लोगों को कई बार बताती हूँ कि आप क्या करो, दिन में every 2 hours में set a alarm and write it down कि आप कैसा फील कर रहे हो और take average of that। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि whether things are working in your favor or not in your favor। आप कैसे आगे जा रहे हो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, because how you feel is indicator of what you are working behind। Yes, feelings is the key. Feeling is the key. Okay, that's good one. Okay, thank you so much for that. The next question is, how can Ho'oponopono help me in overcoming self-limiting beliefs? Is it possible? Yes, it is possible, because जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ऐसी कोई मेरी नेगेटिव बिलीफ्स है, जब आप उस चीज को वो 4 फ्रेजेस के साथ जब आप रिपीट करते हो तो इट्स अ गुड चांस दैट वो जो बिलीफ होती है वो अंदर से निकल जाती है। सबसे फर्स्ट स्टेज होता है अवेयरनेस स्टेज, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। 50% ऑफ योर थिंग इज डन व्हेन यू आर अवेयर कि ये ही मेरी लिमिटिंग बिलीफ बन रखी है। कई बार हम उतने अवेयर ही नहीं है आज के लाइफ में कि ऐसी कौन सी, अभी जब मैं बता रही हूँ आपको वो जब मैंने एग्जांपल बताया लग्जरी कार का, और जब मैं खुद के लिए कभी मनी अगर मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कार मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैं ये चीज रिकॉल नहीं कर पाती हूँ कि मैं कैसे वो स्टेटमेंट बना लिया था कि यार इतने कम दिनों में आई मीन यू कांट अर्न सो मच। या तो अगर कई बार हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब हम खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, इसके लिए मैं लोगों को लिस्ट ऑफ बिलीव्स देती हूँ कि आइडेंटिफाई योर बिलीफ। तो हमें पता चलता है कि यार यस दिस इज नॉट एम्पावरिंग वन बट दिस इज लिमिटिंग वन, और पता चल रहा है तो यस यू कैन एब्सोल्युटली यूज Ho'oponopono टू क्लीन ऑन दैट लिमिटिंग बिलीफ। Wow. Okay, thank you. The next question is, how can I maintain consistency and motivation while practicing Ho'oponopono? क्योंकि जर्नी में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि करते करते हमें कई बार फ्रस्ट्रेशन फील होती है और कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेटेड। सो हाउ टू मेंटेन दैट? या वेरी ट्रू। अभी आप सभी को पता है कि बीइंग बिगिनर, अगर सपोज आप कोई डिटॉक्स थेरेपी भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पहले ना बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि भले ही वो प्योरिटी है, भले ही वो प्रोसेस बहुत अच्छा है, बट बॉडी को भी कुछ हैबिट्स है यार, उसको भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो पहले वो क्या करती है, बहुत वो करती है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है। इसके लिए कई बार हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि यार मेडिटेशन नहीं होता है मेरे से, नहीं होता है क्योंकि वो हैबिट नहीं है टू स्टे टू बीइंग फोकस्ड इन दैट अवेयरनेस स्टेज। तो यस, जहां पे ऐसा टाइम आएगा जहां पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, बॉडी जानबूझ के आपको एक्सक्यूज देगी कि यार अच्छे रिजल्ट तो नहीं आ रहे, उल्टा कि मुझे तो ज्यादा ही ऐसे हो रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी जो भी पास्ट में है वो ब्लॉकेज जब निकल रहे, दैट निगेटिविटी जब निकल रही, तो वो आप निगेटिव फील करके ही निकलेगी ना। बट वंस दैट स्टेज इज डन यू आर ऑल देयर टू मैनिफेस्ट। और मैं लोगों को मोटिवेटेड रहने के लिए एक चीज बताती हूँ कि जब भी हम एक जिम में जाते हैं तो वहां पे उन लोगों ने स्केड्यूल लिखा होता है कि आप इतने बर्पीज कर सकते हो, इतने पुशअप्स कर सकते हो, इतने जंपिंग जैक, ऐसे उन लोगों ने एक जनरलाइज स्केड्यूल बना रखा होता है। बट क्या हम फॉलो कर पाते हैं? और इसी के लिए वहां पे क्या रखा होता है, एक ट्रेनर रखा होता है स्पेशल। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमें ट्रेन मतलब खाली हमारे पे मेंटोरिंग करता है, आपको आज ये करना है सर, क्यों नहीं कर पा रहे हो, करो, होएगा, क्यों नहीं कर पा रहे हो, करो। हम हजारों एक्सक्यूज देते नहीं यार
आज मेरा बहुत टफ डे था, बहुत हेक्टिक था. सो व्हाट, टफ डे था तो क्या हो गया यार, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है. टफ डे तो और करो और अच्छा फील करोगे. तो ये बताने के लिए कौन होता है? मेंटोर होता है हमारे माइंड के लिए. इसके लिए ऑलवेज कैच होल्ड ऑफ अ मेंटोर. अगर आप किसी को भी, इफ यू कैच होल्ड ऑफ अ मेंटोर, योर कंसिस्टेंसी इज बीइंग टेकन केयर. And remember, there is always a light available, but it's we who do not actually, recognize. कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं, but हम उनको पहचान नहीं पाते. So thank you so much for that. Another question is, I'm just asking this out of curiosity. Is there any relation between Ho'oponopono and law of attraction? Yes, they are very much related. As I said that मैंने जब तक हो'oponopono नहीं सीखा था, तब तक मैंने गूगल पे खाली इतना ही देखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज 3 stages: wish, intent and receive. But now I'll say, if you add clean wish, then immediately there will be intention देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Immediately you will receive and that will fasten your process. क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ्स पे हो'oponopono के थ्रू अगर काम कर लिया है ना, तो manifestation will be very much faster than the normal one. So that way they are interrelated. Okay, thank you. Wonderful. Friends, if you have any questions, please ask. मेरे पास जो लोग questions भेज रहे हैं, मैं उनका पूछ रहा हूँ. And if you have doubts, to ask. Do clear your doubts. हो सकता है कि आप जो डाउट पूछ रहे हैं, जो आप क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, इट कैन हेल्प अदर पीपल जो अभी देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, उनको किसी ना किसी रूप में वो हेल्प कर सकता है. So guys, this is a good platform. You can ask any doubt of yours. Don't hold them within you. Good opportunity. Ask them upfront. I'm here to answer you. Yeah. You have the right mentor at this time related to Ho'oponopono for manifestation. So if you want to manifest, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो manifest कुछ नहीं करना चाहता है, जिसकी कोई desire ही ना हो. So if you have any desire, if you want to use Ho'oponopono for that, you can ask. There's another question is, how can we use Ho'oponopono to heal relationship with others or for others? Yes. Actually, I'll say one thing. Whenever I take relationship mastery courses, मैं लोगों को यही बताती हूँ कि जो भी relations, जो भी चीजें आप फेस करते हो और जो भी जिसके भी साथ आपकी शादी होती है, so they are disowned parts of your to make you complete one. So जब भी मैं वो आपको बताती हूँ कि रिलेशनशिप मास्टरी में जब मैं लोगों को करवाती हूँ, तो पता है जब आप खुद को हील करोगे, तो हमारे मेंटोर कई बार बोलते थे कि यू आर लाइक अ वेल ड्रेस्ड बेगर कीपिंग अ वाटका इन योर हैंड एंड रोमिंग ऑल अराउंड इन द होम. जैसे ही घर का दरवाजा खुलेगा तो आप तुरंत चालू कर दोगे, यार मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, यार मुझे कोई केयर ही नहीं करता. यू ऑलवेज स्टार्ट विद दैट. बट यू नो, मांगता कौन है? जिसके पास होता नहीं है. वो कभी नहीं मांगता जिसके पास होता है. So if you are completely fulfilled with love, care, you will give, you will not ask. And their transition comes, their transition plays a better role. So yes, you can obviously heal every relation through Ho'oponopono. Yeah. Wow, that's good. So we have a question here from Ritika Rashmi. How to connect people through Ho'oponopono prayer for business? Yeah, this can also be done because whenever we apply Ho'oponopono, it's the kind of situation that we hold and we say, I'm sorry for this. Please forgive me. I love you. I thank you. So anything that you want to attract, any situation that you want to have that to happen, yes, we can do that through Ho'oponopono. वो हम Ho'oponopono के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जब भी उस चीज को लेके मे बी आप कोई फियर होल्ड कर रहे हो, मे बी आप कोई जजमेंट होल्ड कर रहे हो, सो दैट इज द रीजन दैट इज नॉट गेटिंग मैनिफेस्टेड. अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे कॉज, तो यस, कैन बी डन फॉर एनीथिंग. Okay. I hope Ritika, you are like you got the answer. If you still confused, you can still ask the question. Okay. Yes, Ritika, it's a wonderful question.
and it can help a lot of people who are into business. So इसी से रिलेटेड मैं भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो बिजनेस के लिए जैसे इन्होंने पूछा है, तो इनको जो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पिक्चर को माइंड में रखना है, या जो क्लाइंट्स अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको अपने सामने रखना है, उनको क्या मैनिफेस्ट करना है इसमें? जो so मतलब it's the क्लाइंट्स आ रहे हैं। yes, so it's the end result कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, you should not focus on the process कि कैसे मैं उनको कॉल कर रही हूँ या कैसे मैंने सेशन लिया एंड उसके बाद पीपल शोड अप, उसके बाद ये हुआ. व्हाट आई विल फील इफ आज सपोज मेरा 50 का क्लाइंट बेस है और कल जाके मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ 1000, तो आज मेरा कुछ तो एक माइंडसेट है जो मैं होल्ड कर रही हूँ, मे बी कुछ निगेटिव पॉइंटर्स है जो मैं होल्ड कर रही हूँ, और वो मुझे अगर पता चल जाएंगे कि किसके वजह से वो चीज नहीं हो रही है, तो वो कॉज वहां से शुरू होता है. जब आप खुद को मैनिफेस्ट करोगे, आप देखोगे कि यार अगर मुझे 1000 का डेटाबेस मैनिफेस्ट करना है, उनको अगर मुझे हैंडल करना है, व्हाट इज दैट क्वालिटीज दैट आई नीड विद इन, तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ लैग कर रहे हो. जहां लैग कर रहे हो उसके ऊपर आप होपोनोपोनो यूज करो कि दीज आर द क्वालिटीज. सो आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग द जजमेंट, I am sorry for holding this limiting belief within me, which are holding me back to attract those clients. Please forgive me. I love you. I thank you. So this way, you can use Ho'oponopono to manifest whatever business situations you want. Okay. That's a wonderful answer. And thank you so much, Ritika, once again for this question. Yes, thank you so much. It's an amazing question that you asked. You are being a good and active listener, that means. Yes, she's also a coach. Okay, so Yes, the any next more question questions? is, Yeah. how long does it typically take to see results from practicing Ho'oponopono? कितना टाइम Okay. लगता है? Yeah, actually, it depends on the situation, basically, the blockage, really, I can say. But yes, we practice on every parameters like money, career, health, and relationship. 21 days, it's a time to reset to a new habit. It is being said that 21 days is a habit that we can really form a new habit, new belief through. So yes, I normally do Ho'oponopono for any one thing for at least 21 days consistently. Okay. Yeah, So for 21 days at least. at least. Okay, that's good. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि क्या होपोनोपोनो हेल्प कर सकता है टू हील एंसेस्ट्रल और जनरेशनल ट्रॉमास? Yes, it will heal. जब हम लोग एडवांस लेवल के होपोनोपोनो में जाते हैं, तो हम लोग लिटरली वो सेंटेंस भी ऐड करते हैं कि अगर ऐसी कोई लिमिटिंग बिलीव्स मेरे एंसेस्टर्स के थ्रू आई है, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे प्रेजेंट लाइफ में तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि ऐसे कुछ हुआ है, फिर भी चीजें मेरे साथ नहीं हो रही है, कोई फोबिया लेके मैं चल रही हूँ जो फिलहाल का तो नहीं है, कोई फोबिया लाइक मेरे प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो यस वी ऑल्सो एड दैट कि आई एम सॉरी टू हैव दैट विद एंसेस्टर्स एंड प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. तो आप अगर उस ट्रॉमा को, उस बिलीफ को, उस फोबिया को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपके प्रेजेंट से तो रिलेटेड नहीं है, मे बी आपके पास्ट लाइफ से या एंसेस्ट्रल से आया है, तो यस वी जस्ट आइडेंटिफाई दैट एंड वी मतलब उस इंटेंशन से वी डू होपोनोपोनो ऑन दैट. Okay, that's good one. And the next question is, are there specific meditation techniques associated with Ho'oponopono? Meditation techniques, I'll say we chant mostly 108 times on one limiting beliefs that you want to take out from you. कई बार क्या है, हमें मेडिटेशन की आदत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन देखोगे ना, ये बहुत डीप डाउन कंसेप्ट है. व्हाट इज मेडिटेशन इज फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंट, और जस्ट एक मिनट आप अगर जब करके देखोगे ना, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्राई दैट, तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना मंकी के जैसा कभी पास्ट में जाएगा, कभी फ्यूचर में जाएगा, और यही हमारे सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है. तो इसके लिए हम गाइडेड मेडिटेशन क्यों लेते हैं, ताकि आप फोकस रह पाओ. सिंस यू आर अ बिगिनर, सिंस यू आर न्यू टू दिस जर्नी, टू स्टे फोकस also becomes challenge for many of us.
तो yes, we do take. I have recorded certain, मतलब मेरे पास कुछ कुछ जो अपने कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर रिकॉर्डेड ऐसे मेडिटेशंस है which are specifically meant for this Ho'oponopono and to overcome your limiting beliefs on all the four areas: relationship, health, career, money. So yes, you can use those meditations to heal yourself. क्योंकि meditation guided जब होता है ना, तो it help you to stay focused. क्योंकि आप जब खुद होके बैठते हो एंड यू आर बीइंग अ बिगिनर, तो आप बोलते हो यार 2 मिनट में नहीं, मेरे से तो नहीं हो रहा है, तो आप वो कंसिस्टेंसी लूज कर जाते हो. एंड थ्रू टेकिंग सर्टन हेल्प, maybe through guided meditation or something like that, so you stay consistent also and stay focused also. Yeah. Okay, that's awesome. And I have 2-3 more questions only. Yeah. Friends, agar aapke paas questions hain, then keep asking. So the first question is there any recommended mindset? ऐसा कोई mindset है जिसमें हमें होना चाहिए, या state of mind? क्योंकि होपोनोपोनो को प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक a mindset is required. नो, माइंडसेट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप ऑलरेडी उस माइंडसेट को निकालने के लिए वो करने वाले हो. तो आपका माइंडसेट तो ऑटोमेटिकली जब भी आप मेडिटेशन करते हो, तो कई बार हम मेडिटेशन कब करते हैं, जब व्हेन वी आर डिस्टर्ब, क्योंकि हमें वो चीज याद ही नहीं आती. व्हेनेवर वी आर हैप्पी, तो आप सपोज कोई बर्थडे पार्टी में हो, यू आर सो हैप्पी, यू आर एंजॉयिंग, तो आपको याद भी नहीं आएगा कि यार मैंने आज के लिए मेडिटेशन नहीं किया है. सो अपने को वो आदत है टू लुक फॉर लैक, टू लुक फॉर जो कमियां हैं वो देखने की पहले से एक माइंड को आदत पड़ चुकी है. हम जब भी मिरर में भी देखते तो वी लुक फॉर, अरे यार पिंपल हो गया, अरे यार एक्ने हो गया, तो वो एक आदत पड़ चुकी है. इतना ब्यूटीफुल फेस हमें नहीं दिखता यार, आई हैव टू ब्यूटीफुल आईज, आई हैव नोज. कितने लोगों को तो वो भी नहीं है, सारे ऑर्गन्स भी नहीं है, बट स्टिल क्या हम एवरीडे ये बोलते हैं खुद को जब मिरर में देखते हो, वाओ आई हैव ब्यूटीफुल 2 आईज, आई हैव 1 नोज? हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि आपको अपने को क्या लगता है, नो इट्स कॉमन, सबको ही तो होता है, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, सबको होता है, सबको नहीं होता है. यू आर फॉर्चुनेट टू गेट एवरीथिंग. तो यस, इसके लिए कोई माइंडसेट की जरूरत नहीं है. यू कैन डू व्हेनेवर यू वांट टू. डूइंग इज इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. आफ्टर ऑल व्हाट मैटर्स इज यू एटलीस्ट स्टार्ट, क्योंकि लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते. स्टार्टिंग स्मॉल डजंट मैटर, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा लग रहा है. I am really loving your answers and the examples you are sharing here. Thank you so much. एक क्वेश्चन आया है कि मैम ने जो एग्जांपल शेयर किया डॉक्टर ह्यू लैन का, क्या ऐसे कुछ और साइंटिफिक स्टडीज या फिर ऐसे कुछ रिसर्च सपोर्टिंग कुछ ऐसी हैं जो होपोनोपोनो की इफेक्टिवनेस को प्रूव करती हैं? Actually, I think this much is sufficient. क्योंकि rather than going to science, what is important is if you understand कि भाई ये काम करने वाला है मेरे लिए, apply it. या हम साइंस क्यों जानते हैं? ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को सपोर्ट करे. क्योंकि जब चीजें लॉजिकल होती है ना, तो हम हाँ भाई हम करेंगे. जब चीजें लॉजिकल नहीं लगती तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, जादू है, मिरेकल है. और मिरेकल या जादू कभी कभी काम करता है, एवरी टाइम काम नहीं करता है. बट जब लॉजिक है कि हाँ भाई इसमें पानी डालूंगी तो पानी जाएगा, सो इट्स अ लॉजिकल थिंग, इट विल वर्क फॉर श्योर 100%. सो यस, साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन, सो दैट हमारा सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है टू वर्क अकॉर्डिंगली. बट इतना साइंस आई थिंक इज इनफ. यू कैन गो डीप इनसाइड दैट स्टोरी, देन you can read all the books on Ho'oponopono at zero level, and there is one more book, I just forgot the name, but there is a series of book, like वो 3 books का एक series आता है जिसमें डॉक्टर व्यूलन ने सारे stages समझाए हैं Ho'oponopono के. So yes, you can go and read that. I'll give that to the Prashant sir so that he can put that in the description below. What are the books that you can really refer for this, or else you can really put that for on Google, Dr. Masaru Emoto's water experiment, and second thing is Dr. Vulan research on Ho'oponopono. Yeah. Sure. If you guys actually need these informations, I'll mention that in the description box. Yes. And next, second last question is, please ask ma'am to share some words of inspiration or encouragement to start my journey of Ho'oponopono for manifestation.
आपको शुरू करना है। जब आपने ये बोल दिया और मैंने तो वो बोल दिया, हाँ तथास्तु, लेट दिस हैपन टू यू। आई ऑलवेज बिलीव कि आपने सोच लिया है तो होना ही होना है। स्टार्ट स्मॉल, डजंट मैटर, बट स्टार्ट इट। बी कमिटेड टू योर सेल्फ। कई बार छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी चीजें, कि अलार्म बजा है, मुझे उठना है, हम उस चीज को क्या करते हैं, स्नूज पे डालते हैं, फिर से स्नूज पे डालते हैं, फिर से स्नूज पे डालते हैं। इससे क्या होता है, हमारे माइंड का कंडीशनिंग होता है कि हम तुरंत एक्शन टेकर्स नहीं है। और यही छोटी छोटी चीजें हैबिट फॉर्म बन के हमारे लिए क्या हो जाता है कि कितना ही हम अवेकनिंग सेशन देख लेते, कितना ही हम अवेकनिंग चीजें सुन लेते, हम एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में हर दिन ये चीज कर रहे हैं। कोई कोई फ्रेंड ने हमें बुलाया है कि तू आ जाना, यस यस आई विल कम, बट हम उस हिसाब से कमिटमेंट नहीं दे पाते। और जब हम नहीं देते तो हमारे सेल्स को भी पता है कि इसको 3 बार पुश करना पड़ता है ये इंसान को, तब जाके ये काम करेगी। इसके लिए वो हमारी हैबिट बन चुकी है। ब्रेक दैट पैटर्न, ब्रेक दैट, डिसाइड एवरी डे, डिसाइड इवन अ स्मॉल थिंग इज फाइन, कि आज मैं लिफ्ट नहीं स्टेयरकेस से जाऊंगा, बट स्टे कमिटेड टू व्हाटएवर यू डिसाइड। अगर आप ये करते जाओगे तो आपका वो एक ब्रेक होगा। इसको एनएलपी प्रैक्टिस भी में भी यूज किया जाता है। तो आपका वो एक पैटर्न ब्रेक होगा, एंड यस, आप जैसे ही सोचोगे आप वर्क एक्शन टेकर्स बन जाओगे। आपको करना ही करना है, और आपको मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बनना ही है। यू डिजर्व टू बी दैट। या सो ऋषि, ओनली जैसे अभी स्नेहल ने कहा, जस्ट स्टार्ट, सो स्टार्ट योर जर्नी, एंड दैट इज द थिंग व्हिच मैटर्स। यस। So the last question of this session, any final tips, Snehal, for the people who are watching us now, who will be watching us later? So any final tip you want to share, you want to give to them? Yes. So see, first stage is awareness stage. तो आपको सबसे पहले अवेयर होना है, आपको ये चीज जानना है थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स विच एवर आई हैव गिवन, कि दिस लाइफ इज वेरी प्रीशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने ही लोग हैं जो नहीं, मतलब जिनको सारे ऑर्गन्स नहीं है, या कहीं पे ब्रेन में कुछ कमी है, जो अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते। ये इनबिल्ड उन लोगों में आया है। जब हमें ये एबिलिटी मिली है थ्रू ऑल द रिसोर्सेस अराउंड, व्हाई नॉट डू दिस फॉर अ गुड कॉज। और आपको पता है, जब आप में मिरेकल्स आएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी, तो आपसे कोई हर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स यू आर रियली यू डूइंग योर बेस्ट। आज कितनी बार ऐसे होता है, और ऐसे नहीं कि हम उस चीज के लिए बने हैं। हम कभी भी किसी को भी अगर कुछ भी चीज में उनको अगर गुस्सा दिलाते हैं, और कई बार अगर इंसल्ट करवा देते हैं, तो हमें खुद को उस चीज में बहुत बुरा लगता है। ट्राई टू फील दैट, मैनिफेस्ट, स्टार्ट स्मॉल, खुद पे काम करो। और जब काम करोगे तो आपको पता है, जब आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे, तो आप आपके सराउंडिंग में देखोगे। एंड आप जब आए हो तो क्यों ना उस चीज को अच्छे अच्छे कॉज के लिए यूज करें। तो जस्ट डू इट। Wow. So wonderful, wonderful, and thank you so much, Ritika. Thank you so much, Healer Bhaiya, and more power to you too, Ritika. Thank you so much. More power to you too. So wonderful. I really love the session. And friends, as now we are reaching to the end of this session, my heart is actually overflowing with gratitude to all of you. So thank you so much, the great audience, and for the wonderful presence of all of you. आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर अपने आप को इस सेशन के लिए तैयार किया. So thank you so much for that. आपकी energy and your eagerness to learn actually has made this session truly exceptional. A profound and heartfelt gratitude again to our esteemed guest speaker, Coach Snehal Lodha, जिनके विजडम ने आज हमें ये लाइट दिखाई है, हमें रास्ता दिखाया है. एंड अगेन योर एक्सपर्टीज, कंपैशन एंड डेडिकेशन टू द टीचिंग्स ऑफ Ho'oponopono for manifestation, it has left a great mark on our souls. Friends, what do you think? Thank you so much. I'm so blessed to have such a wonderful audience. And also, Prashant, thank you so much for inviting me to your YouTube live. I'm really grateful, because this gave me the opportunity
to enlighten so many souls. So thank you so much. I am very grateful to have this opportunity. Thank you once again, and again on this inspiring and collective journey towards healing, forgiveness, and manifestation. But friends, remember that the power to transform lives is actually within you, within us. And as we are part of this session today, carry this essence of Ho'oponopono with you. Practice forgiveness, nurture the positivity, and manifest your dreams with अनवेवरिंग बिलीफ. क्योंकि आपका बिलीफ अगर इतना स्ट्रांग हो जाए तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी. बट अगेन आपका माइंड उसके लिए तैयार होना चाहिए, राइट? So with again with the deepest appreciation and with wonderful thanks to all of you, to the coach, may your lives be filled with abundance, love, and spiritual growth. So thank you so much. See Thank you you so much. next week, and next week with a new speaker and a new topic. Till then, stay healthy, take care, and thank you so much, Snehal, once again for accepting this Thank proposal and you so coming much. here. Bye. Yeah. Take care, stay healthy. Namaste. Bye bye. Bye bye.